अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन को है नूर के प्रोग्राम कलरबाजी में मैं हूं आपका होस्ट। वालों को खबर क्या। और यानी कि चाचा बूटा मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में चौधरी आशिक हुसैन, और मेरे दाएं हाथ हैं जनाब हमारे विक्टिम के तौर पर आज जो है वो है इमरान। ये खुद तो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं लेकिन इनके गुर्दे सही काम नहीं करते। इनकी मिसेस से इनके तल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए और वो इनकी एक बच्ची को बजरिया साथ ले गई, गली गई, चली गई। वो अपने वालिदैन के पास चली गई। अब इमरान बीवी को हसूल के लिए, बच्ची को समझाने के लिए मुलाजमत के अलावा ये एक नई ही मुलाजमत शुरू हो गई है। अल्लाह ताला इनके पित्ते की दर्द ठीक करे। और बाकी की वारदात आपको इमरान सुनाते हैं खुद अपनी जुबानी। जी इमरान साहब, कैसे हुआ, क्यों हुआ आपके साथ? 2009 में मेरी शादी हुई थी राबिया नामी। 2009 से आपकी शादी हुई? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। तो 1.5 साल तकरीबन साड़ी शादी ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਲੇ ਨੇ। तो ठीक सी निज़ाम सारा, रिलेशन ठीक रहे ने शादी दे। ਤੇ 1.5 साल तो बाद साढ़े रिलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, घरेलू न चाकी। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਫਿਸ ਗਿਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਮਝ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਸੇਜ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ? नहीं कराया? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ बहुत दिल करता बच्ची बच्ची तुम्हारी ना मैं तुहानू मिला के देंगा, तेरी फिक्र नहीं करनी तुसी। मुझे बताएं, आपकी बीवी का आपके साथ कोई झगड़ा होता? नहीं कोई भी नहीं। तेरे तो की टेंशन सी? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। अच्छा यानी कि मां विचों फाड़ करो। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਇਖਤਲਾਫ? ਉਹੀ ਬੂਟਾ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਲੈਗ ਪੀਸ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬੋਟੀ ਕਿਉਂ ਪਾਤੀ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਘਰੇਲੂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ ना। आपको कुछ समझ आती है कि इन दोनों में से गलत कौन है, आपकी बीवी या आपकी वालदा? ਨਹੀਂ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? हो सकता है एडे बड़े घर दे विच साया होवे। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ आपकी बहनें हैं घर पे? ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ अपने अपने घरों में? भाई? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। अल्लाह दा? ਹਾਂਜੀ ते पूरे घर दी कल्ली मालक सी, वे भी कादी ਜੀ। टेंशन? ਬਸ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਕਾਣਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। आशिक साहब, आप वकील तो हैं लेकिन मुआशरे की इस तलख हकीकत से भी आशना है कि इतनी वो बदकिस्मत औरत है जो कि इन तमाम सहूलतों के बावजूद कि घर में उसका कोई देवर नहीं है, कोई जेठ हाड़ सियाल नहीं है, एक अकेली वालदा और खावन। उठ के बाकी गल हुई तेनू क्या? इसका मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही।
मैं चाचा बूटा जी सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। और ताजी रात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत कत्ल की सजा मौत है। ओ भाई मेरे 302 इधर किधर आ गई? नहीं देखे ना, यहाँ बैठे हुए हैं तो कानूनी बातें करने बैठे हुए हैं, तो आपके नादरीन को ये बातें भी बताना जरूरी है कि वो इस तरह के काम से गुरेज करें। तो अब इनकी बात करते हैं। हो आशिक से मनु तो बहुत जहीन आदमी लगता है। मैं तेन पूछे आंडे किधर जाना, तू कहना डबल रोटी 35 रुपए दी। ये मैं वही बात करने लगा हूँ। टाई बहुत ही कुट के तो नहीं बन ली। देख अगर आप ऐसे करें तो फिर दफा 380 की सजा भी मैं बताऊंगा कि 7 साल है। तो बात ये है कि इनकी बात। ओए आशिक साहब तो भैया ठीक है तुम्हारी? हाँ जी, मैनू केड़ा बुखार होया है जनाब। 302 380 ये सारा कुछ किधर आ गया? तो जनाब ये प्रोग्राम लाखों लोग देखते हैं, नादरीन को पता होना चाहिए सजाओं का। वैसे मैं आपको बताऊं कि एक कामयाब घरेलू बीवी के पीछे उसकी माँ का हाथ होता है और एक नाकाम घरेलू माँ के पीछे भी उसकी बीवी का ही हाथ होता है। बिल्कुल, तुसी बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर बच्ची वालदा उसकी सही तरबियत करे, उसे समझाए कि बेटे यही तेरा घर है, यही तेरी दुनिया है, यही तेरी जन्नत, यही तेरी दोजख, यही इसी में तुझे बसना है, तो उसको फपे कुटनी बन के नए नए मशवरे दे के उसका घर खराब ना करे, तो फिर मेरा ख्याल है कि 6 महीने आराम दे नाल लंघ जांदे ने। हाँ बिल्कुल सही गल है। कई मावां होंदियां ने ना, देखो दूजे के दिन मुंह चुक के धी वाल वड़ियां रहिंदियां ने। जारी बात है धी ने फिर अपनी टेंशन मसले मां नूं दसने, मां ने अगों फिर दसना कि तू इदां कहना सी, तू इदां करया कर, तू इदां करया कर। ਉਹ ਫਿਰ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਬੂਟਾ ਜੀ ਕਿ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਲਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मेरे हिसाब के नाल जी मां होंगी ना, विआह तो बाद या तो कोई 6 महीने बाद आवे या फिर साल बाद। आ जरा दूजे दिन मुंह चुक के आई रहने ना, आ काम जरा बहुत खराब होंदा है। 4 किन्नू भी फड़े होंदे हत्थ दे विच, कदी 3 केले ला के तुरी आउंदी, कदी एवें मैं इधर आई सा, मैं सोचा मैं चलो हो जावां। हाँ बिल्कुल, कई मावां ने तो किते जाना होवे ते आ जांदियां कि आजा जरा मेरे नाल हरियाणा ले जाना 2 मिनट। आपका क्या ख्याल है कि आपकी बीवी के आपके साथ कोई नाजायज तल्लुकात थे? नहीं नहीं, मेरे 3 साल च मैनू तेरे कोई हाले तक नजर आया तलक। यानी तुम्हें कोई शक नहीं है अपनी बीवी पर? नहीं, मैनू कोई शक नहीं, ना मैनू किसी ने कभी कोई लामा ही दिता। अच्छा कि तू इस कोलों बदकिस्मत आ कि तेरे कोल एक बंदा आया, तू ਉਹਦਾ मसला नहीं हल करन दिया। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਆ। देख अगले ने कोई ऐसी किस्म की किसी कुछ गल की है? नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं एक और बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मोटरसाइकिल या कार चोरी करने की सजा जो है ना पाकिस्तान में वो 7 साल है। अच्छा तेन कोई इट मार के दौड़ा तो कितनी की सजा? नहीं, मैं साथ साथ हमारा जो असल मेरा मिशन है मैं उसमें भी जो है पूरा। वो तू अपना मिशन पूरा करिए ना। बेचारे नु जरा मैं बुलाया था तो जी मिशन मैं इनकी भी साथ ही बात कर रहा हूँ बूटा। उनके कितने तू बात कर रहा है यार? तू तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ख्याल आपको डिस्प नसरीन की जरूरत है। नहीं मैं इसको भी बता रहा हूँ, साथ साथ मैं नादरीन को बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ ताकि आप। और मैं कार चोर हूँ? नहीं हो सकता कल को हो जाए आप। लो फिर आशिक साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਤਲ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਕ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਚੌਂਕ ਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਚਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। बाहर निकलते मतलब 2 बंदे में चपेड़ा थप्पड़ मार देने, यार को गल भी नहीं सी एवं चपेड़ा मारती क्या? नहीं चाचा जी आप गलत तरफ जा रहे हैं। नहीं कोई वजह भी नहीं होती यार, बंदा लड़ाई झगड़े वाला भी नहीं। इधरों एक बंदा आया उन्हें थप्पड़ मारा तो निकल गया, कोई ऐसा मामला भी नहीं चपेड़ा खान वाला। देखे मुझे आपने, मेरा ख्याल तो मेरी गल समझ नहीं आ रही। नहीं आ रही है, मैं एक वकील हूँ। ओ चाटी यार तू पता नहीं केड़ा वकील है, मैं तेरे को गल कोई पूछता तू अगो मैनू कोई नाजरीन वक्त तू एक छोटे से बड़े एक मिनट बड़े बात
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन हुण ब्रेक तो बाद मैं मसला हल करना इमरान भाई दा ते जेह्ड़े बाकी जेह्ड़ियां फिक्कियां गल्लां ने अपने आशिक साहब। इमरान आपने सिर्फ 2 मुकदमे किए जी। और आपके दोनों मुकदमे जो हैं वो वैसे ही पड़े हुए अभी तक, वो पेंडिंग है, उनमें कुछ नहीं हुआ। एक मुकदमा आपने गार्डन कोर्ट में अपनी बच्ची की कस्टडी का किया। हाँ जी। लिजवा नाम बताया जी था, जिरवा। वो भी अभी तक पेंडिंग है। आपकी बीवी ने भी आप पर को मुकदमा किया? जी उन्हें मेरे ते डैमेजेस किया है 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपये तक केस। जी। कैसा डैमेज? मतलब कि जी यही सामान वगैरह चीज वगैरह ओदा जेवर वगैरह जी मेरे कोल है जी सारा। टोटल उन्हें कैलकुलेटर ते हिसाब ला के ते 9 लाख रुपए एंड दे मेरे नाल कड्ढे है जी। अच्छा साहब, इसकी बीवी ने तलाक तो ली नहीं, जी अभी तक वो इसकी बीवी है, तो फिर ये केस कूस और सारे क्लेम का क्या हुआ है? जी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा अगर इजाज़त हो तो। हाँ, कि किसी की जेब से जाली नोट बरामद हो जाए तो उसकी 10 साल सजा है हट जा। पाकिस्तानी कानून के तहत। ठीक है, अब आप क्या बात कर रहे थे इनके बारे में, जरा दोबारा बोलिएगा। अल्लाह ही हाफज है आपका। और मैं तो तेन बर्दाश्त करदा ही बेटे, मैंने लगता इमरान ਨੂੰ भी दाद देनी पैनी है। मैंने इसीलिए जरा बड़े सबर के नाल तेरियां गल्लां सुन रहे हैं। इसीलिए पहले बता दिया खुदकुशी का इरादा करने की सजा कितनी है और जुर्माना भी। अब आप क्या पूछना चाहते हैं? इसकी बीवी ने केस किया है जहेज लेने के लिए, तो वो उसकी मालक है। मालक तो है, लेकिन कूलर आ गए। मैं आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखूंगा। एक कूलर है, इनसे सुन ले क्या कहते हैं जी। हालू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से? मैं यूसुफ गल कर रहे हैं बुढ़े चीचा वतनी तो। चीचा वतनी से? जी यूसुफ। जी यूसुफ साहब। बूटा जी, गर्मियां आ रही ने अगे जी। और लोड शेडिंग ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜੀ। अच्छा जी। ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਸਦਰ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? भाई ये तो बड़ा हुण पुराना जिहा काम हो गया। हुण ते पाक तुहानूं ਇਹ आदी हो जाना चाहिए, तुहानूं भी तुहाडे बच्चिਆਂ ਨੂੰ। हुण तुसीं ਇਹਦਾ सही ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। हुण तुसीं ਇਹਨੇ हुण हुण ने इदां ही रहना हुण साढ़े। ਉਹ ਬੂਟਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲੀਏ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋ ਨਾ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਨਾ यूपीएस ਦੇ ਪੈਸੇ, ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ। 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬੂਟਾ ਜੀ ਬੱਤੀ ਗਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਸਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ मैं आके सोता ते 3 घंटे हो गए ने बत्ती गई। मैं दसो मैं की करा हुन? आप जो है किस्तों पे एसी ले, किस्तों पे यूपीएस ले, बाद में जलील होते रहे, यही होना है बस। ठीक है मशवरा अच्छा। होना होना कख नहीं गया था। यानी असि चुप करके बस बर्दाश्त करते रहे। हाँ। यानी कि ਹੁਣ ਜੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਚੁੱਪ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ? नहीं तुसी खप पा के ट्राई कर लो, छोड़ पाओ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਦਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਕੋਈ हल कर आशिक साहब। चाचा बूटा जी मैं आपको बता दूं, वो सुन रहे हैं, यूसुफ साहब भी सुन रहे हैं कि तेरे मैं जेन च रखी हो गई गर्मी ना तपया पे आई। नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करने और लगा। चीचा वतनी जाने के लिए कम से कम बंदे के पास 500 रुपए होना चाहिए। 250 जान दा तो 250 आउन दा। मैं जो बात करने लगा हूँ वो ओए सुन चुप ले। करके बह जा आराम नाल। काले कोट आ लिया, मैनू पता तू अज फैसला कीता मैनू ज़हनी अज़ियत दे। नहीं, मैं बताऊं कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट मौजूद है, वहां पे बिजली चोरी करने की सजा 3 साल है। ऐ कहना चाह रहे हैं आप पूछे यूसुफ साहब से आगे क्या कहते हैं। जी यूसुफ साहब। ओ भाई वकील, कैसा नाम है तेरा? है तू आशिक, है तू वकील है, नाम तू भूंडा वाला रखे है। नहीं जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप तंग आके जो है ना वो बिजली चोरी करना ना शुरू कर दें। ओ भाई कित्थों चोरी कर लेनी मैं? किते आउंदी होगी तो मैं चोरी करूंगा। हुण मैं सामने दे घर तारां पा लवां, उन्हां दी भी बंद होवे, साडी भी बंद होवे, ते मैं की कर लेना चोरी करके? बात तो ठीक है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जो चीज है ही नहीं। ਆਹੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਬੂਟਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा जी यूसुफ साहब। ਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ यूपीएस ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਯਾਰ 3 ਕਮਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ, 2 'ਚ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਖਰਚੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ।
ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ यूसुफ साहब आपका मसला मैंने सुन लिया ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ और आपकी जो मुश्किल है जो आप पर परेशानी है वो इस प्रोग्राम के जरिए बूटा गाल करेगा आप जाके गल करेगा हुकूमत दे नाल टेंशन नहीं लानी पर होना कख नहीं है ਯਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸ ਲੈ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ अच्छा जी मैं पैसे इकट्ठे करके अपने घर से पहले लवावा ना फिर ਤੁਹਾਨੂੰ बाद ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਚਲਵਾ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਯਾਰ हाँ लग जी यार मैंने भी लगती है गर्मी ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਤੂੰ ਤੇ मैं इमरान से कुछ पूछ लो ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਟੀਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। अच्छा जी ठीक है तुसी ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ यूसुफ दुखी चीचा वतनी से ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਾ ਯੂਸਫ ਦੁਖੀ ਕਹਿ ਲਾ ਯੂਸਫ ਦੁਖੀ ਕਹਿ ਲਾ ਬੁਕੀ ਕਹਿ ਲਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ चले मैं करता हूँ कुछ भी नहीं खुश रहे भावें जिदा मर्जी रहे यूसुफ साहब आप पाकिस्तानी शहरी हैं आप सारी अवाम के साथ हैं जिदा सारी अवाम बर्दाश्त करती पई है मैं भी इस बुजुर्ग ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦਿਆਂ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ देखे ਯਾਰ? जनाब 20 18 20 करोड़ अवाम ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣ ਬਾਕੀ ਵਾਮ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 18 20 करोड़ अवाम है सबके साथ वही कुछ हो रहा ਤੇ है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਮੀਰ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ आप मुझे बताएं कितने लोगों के पास यूपीएस है यार आप भी मैं- उनके साथ ही हैं आप भी ਮੈਂ जो ਭਾਈ वो ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ करें ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਦੀ तो मैं भाई कि हूं आप पक्का बन जावा ਬਣ ਜਾ ਯਾਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਆ ਪੱਖਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾ आप ऐसा करें ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਯੂਪੀਐਸ ਲੱਗੇ आप ऐसा generator मेरी ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ आप ऐसा करें बांग्लादेश शिफ्ट हो जाए वहां पे बिजली जो वाफर मकदार में मिलती है यहाँ पाकिस्तान तो कितनी इंडस्ट्रियां उथे शिफ्ट हो गई हैं वहां पे सस्ती भी है और मिलती भी है श्रीलंका चले जाएं हाँ या श्री देवी चले जाएं और आपको ये भी बता दूं कि अगर वीजा जाली लगवा के जाएंगे तो उसकी भी सजा है फिर बाद में जो अब बातों में मुझे याद आ गया वरना मैंने ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾ वो ਯਾਰ मैं वकील हूँ मैंने कानून के दायरे में रह के ही ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ इंसान ही होते हैं ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਿਲੌਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ऊंची आवाज में बाप से खिलौना नहीं मांगते वरना मैं तुम्हें 1.5 साल के लिए अंदर करवा दूंगा और यार ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਵਕਾਲਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਤੂੰ मेरा कारोबार है यूसुफ भाई मैंने यही काम करना है और मैं इस्लाह करता हूँ लोगों की ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਚ मैं आपको ये बताया था कि बिजली चोरी करेंगे तो आपको उसकी सजा होगी इसलिए बच जाएं आपको तो मेरा मशकूर होना चाहिए शुक्रिया और साथ 2000 रुपया आपको अदा करना चाहिए और बगैर वीजे से या जाली वीजे पे श्रीलंका जाने से आपको मना कर रहा ਓ हूँ ਯਾਰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਆਸੇ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਤਾ ਅੱਧਾ ਉਹ ਕਰੋੜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਤਾ ਕੰਮ- ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਸੇਵਰ ਲੈ ਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ એનર્ਜੀ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਬਸ ਓਕੇ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਜੀ ਸਫਾ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੱਖੇ ਲਾ ਦਿਓ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਂਡ ਫੈਨ ਜਾ ਬਚਿਆ ਹੁਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਬਣ ਗਿਆ नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ असल में चाचा जी को ना वो कई बातों की समझ नहीं आती इसलिए उनको समझा रहा हूँ प्रोग्राम चाचे बूटे ਦਾ ਸਾਂਭਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ चलो ਸੁਣਦਾ हम को ਰਹਿੰਦਾ जानती है बहाने की गल कर दियो ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ का तो मैं हवा दवा यार कड़के का मसला आ गया दी कॉल बंद कर यार ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ ओ जनाब जी मैं इत्थे कोई मंगण वाले वास्ते प्रोग्राम नहीं करन बैठा दसो यार ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਾਲ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਚੱਲ खुदा हाफिज यार ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ यूपीएस ਲੈਣ ਆ ਗਏ हाँ तो और क्या अगर वर्ल्ड मैजिक मैन बूटा इमरान भाई आपने ये नहीं सोचना कि मेरा आपकी तरफ ध्यान नहीं है नहीं जी आपका ध्यान ही मेरी तरफ है यानी आप यही समझ रहे हैं नहीं नहीं जी बस मेरा ख्याल है कि हुण टाइम हो गया इन्हां दा मसला हल कर दिया आशिक साहब नहीं नहीं वो तो बात बनती है लेकिन अगर आप इजाजत दे तो पहले एक और बात बताओ नहीं मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं नहीं है तो फिर आप हमारे बड़े हैं आपकी माननी पड़ेगी वो जो उसने जहेज की वापसी का केस करवाया हुआ है वो उसे अदालत में साबित करना पड़ेगा अपने गवाह लेके जाएगी और डोली हम लेके जाएंगे बहस होगी फिर वो तमाम कागजात जो हैं वो तहरीरी सबूत देगी फिर अदालत फैसला करेगी और कि नहीं इन्हें इसको- कीता किया ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਮਰਾਨ ਅਭੀ ਬੱਚਾ ਹੈ
इसको कानून के बारे में इतना नहीं पता, इसलिए मैं इसके बता रहा हूँ कि लो जी, मैं अब आपके मसले का हल कर दूं कि कानूनी तौर पर आप आए बाहर आई, आप ऐसा करें कि बुजुर्गों को, कुछ बड़े लोगों को इस केस में घर में ही डालें और वहां पे मसला हल करें, क्योंकि आपके मसले में तलाक का लफ्ज कहीं भी नहीं है, ना तो उस तरफ से ना इस तरफ से। लो जी, आपका मसला हल हो गया, बहुत बहुत मुबारक। अब आप मेरे लिए मिठाई का डब्बा, लेकिन वो शुगर फ्री जो होती है वो लेके आए। बूटा ही हल कर सकता था ये मसला, ये सिर्फ बूटे का ही काम है। मसला कोई भी हो, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में बूटा हल कर देता है। इसके बाद भी आपको किसी किस्म की जरूरत पड़े, मैं हाजिर हूं। और कानूनी तौर पर तो हम आपको यही मशवरा दूंगा कि वेलकम बैक नाजरीन हुण ब्रेक तो बाद मैं मसला हल करना इमरान भाई दा, ते जेड़े बाकी जड़ियां फिक्कियां गल्लां ने अपने आशिक साहब। इमरान, आपने सिर्फ 2 मुकदमे किए जी, और आपके दोनों मुकदमे जो हैं वो वैसे ही पड़े हुए, अभी तक वो पेंडिंग है, उनमें कुछ नहीं हुआ। एक मुकदमा आपने गार्डन कोर्ट में अपनी बच्ची की कस्टडी का किया। हाँ जी, लिजवा नाम बताया था, जिरवा, वो भी अभी तक पेंडिंग है। आपकी बीवी ने भी आप पर को मुकदमा किया जी, उन्हें मेरे ते डैमेजेस किया है 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपये तक जी। कैसा डैमेज? मतलब कि जी यही सामान वगैरह, चीज वगैरह, ओदा जेवर वगैरह जी मेरे कोल है जी सारा। टोटल उन्हें कैलकुलेटर ते हिसाब ला के ते 9 लाख रुपए एंड मेरे नाल कड्ढे है जी। अच्छा साहब, इसकी बीवी ने तलाक तो ली नहीं जी, अभी तक, वो इसकी बीवी है, तो फिर ये केस कूस और सारे क्लेम का क्या हुआ है? जी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, अगर इजाज़त हो तो। हाँ, कि किसी की जेब से जाली नोट बरामद हो जाए तो उसकी 10 साल सजा है हट जा। पाकिस्तानी कानून के तहत। ठीक है, अब आप क्या बात कर रहे थे इनके बारे में, जरा दोबारा बोलिएगा। अल्लाह ही हाफिज है आपका। और मैं तो तेन बर्दाश्त करदा ही बेटे, मैंने लगता इमरान नूं भी दाद देनी पैनी है। मैंने इसीलिए जरा बड़े सबर दे नाल तेरियां गल्लां सुन रहे हैं। इसीलिए पहले बता दिया खुदकुशी का इरादा करने की सजा कितनी है और जुर्माना भी। अब आप क्या पूछना चाहते हैं? इसकी बीवी ने केस किया है जहेज लेने के लिए, तो वो उसकी मालक है। मालक तो है, लेकिन कूलर आ गए। मैं आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखूंगा। एक कूलर है, इनसे सुन ले क्या कहते हैं जी। हालू, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से? मैं यूसुफ गल कर रहे हैं बूटे चीचा वतनी तो। चीचा वतनी से? जी यूसुफ। जी यूसुफ साहब। बूटा जी, गर्मियां आ रही ने अगे जी। और लोड शेडिंग दा बहुत बड़ा मसला जी। अच्छा जी। ਇਹਦਾ पूरे पाकिस्तान दे विच किसे वजीर को, किसे सदर को, किसे वजीर आला को, किसे को ਇਹਦਾ हल कोई हैगा कि नहीं हैगा? भाई ये तो बड़ा हुण पुराना जिहा काम हो गया। हुण ते पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਬੂਟਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲੀਏ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋ ਨਾ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਨਾ यूपीएस ਦੇ ਪੈਸੇ, ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ। 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਬੱਤੀ ਗਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ पिछले 2 रातां मैं मुसलसल काम करके जाग के ते मैं आके सोता ते 3 घंटे हो गए ने बत्ती गई। मैंने दसो मैं की करा हुण? आप जो है किस्तों पे एसी ले, किस्तों पे यूपीएस ले, बाद में जलील होते रहे, यही होना है बस। जी ए मशवरा अच्छा। होना होना कख नहीं गया था। यानी असी चुप करके बस बर्दाश्त करते रहे। हाँ। यानी कि हुण जे पूरा मुल्क चुप आ, नहीं कोई बोलदा ते मैं भी चुप करके बैठा रहां, मैं भी उन्हर का हो जावां? नहीं, तुसी खप पा के ट्राई कर लो, छोड़ पाओ। अच्छा तेरी मेहरबानी, ਇਹਦਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਕੋਈ हल कर। आशिक साहब। चाचा बूटा जी, मैं आपको बता दूं, वो सुन रहे हैं, यूसुफ साहब भी सुन रहे हैं कि मैं जेंच रखी हो गई गर्मी ना तपया पे आई। नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करने और लगा। चीचा वतनी जाने के लिए कम से कम बंदे के पास 500 रुपए होना चाहिए। 250 जान दा तो 250 आउन दा। मैं जो बात करने लगा हूँ वो चुप सुन ले। करके बह जा आराम नाल। काले कोट आ लिया, मैनू पता तू अज फैसला किया, मैनू ज़हनी अज़ियत दे। नहीं, मैं बताऊं कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट मौजूद है, वहां पे बिजली चोरी करने की सजा 3 साल है। कहना चाह रहे हैं
आप पूछे यूसुफ साहब से आगे क्या कहते हैं। जी यूसुफ साहब। ओ भाई वकील, कैसा नाम है तेरा? है तू आशिक, है तू वकील है, नाम तू भूंडा वाला रखे है। नहीं जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप तंग आके जो है ना वो बिजली चोरी करना ना शुरू कर दें। ओ भाई कित्थों चोरी कर लेनी मैं? किते आउंदी होगी ते मैं चोरी करूंगा। हुण मैं सामने दे घर तारां पा लवां, उन्हां दी भी बंद होवे, साडी भी बंद होवे, ते मैं की कर लेना चोरी करके? बात तो ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जो चीज है ही नहीं। ਆਹੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਬੂਟਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा जी यूसुफ साहब। ਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਯੂਪੀਐਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਯਾਰ। 3 ਕਮਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਪੱਖਾ ਲਗਾ, 2 'ਚ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਖਰਚੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। यूसुफ साहब आपका मसला मोना सुन लिया, ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਗੱਲਾਂ। और आपकी जो मुश्किल है, जो आप पर परेशानी है, वो इस प्रोग्राम के जरिए बूटा गल करेगा। आप जाके गल करेगा हुकूमत दे नाल, टेंशन नहीं लानी, पर होना कख नहीं है। ਯਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸ ਲੈ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा जी, मैं पैसे इकट्ठे करके अपने घर से पहले लवावा ना, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ बाद ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਵਾ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਯਾਰ? हाँ लगती है, मैंने भी लगती है गर्मी। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ? ਤੂੰ ਤੇ मैं इमरान से कुछ पूछ लो। ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਟੀਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ। अच्छा जी ठीक है, तुसी ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ। यूसुफ दुखी चीचा वतनी से। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਾ, ਯੂਸਫ ਦੁਖੀ ਕਹਿ ਲਾ, ਯੂਸਫ ਦੁਖੀ ਕਹਿ ਲਾ, ਫੁਕੀ ਕਹਿ ਲਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। चले मैं करता हूँ, कुछ भी नहीं, खुश रहे भावें जिदा मर्जी रहे। यूसुफ साहब, आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप सारी अवाम के साथ हैं, जिदा सारी अवाम बर्दाश्त करती पई है, मैं भी इस बुजुर्ग ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂ ਯਾਰ। देखें जनाब, 20 करोड़ अवाम, ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਵਾਮ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਵੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ 18-20 करोड़ अवाम है, सबके साथ वही कुछ हो रहा है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਮੀਰ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ आप मुझे बताएं कितने लोगों के पास यूपीएस है? आप भी उनके साथ ही हैं, आप भी जो है वो करें। ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਯਾਰ, ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਦੀ। तो मैं भाई कि हुन आप पक्का बन जावा। ਬਣ ਜਾ ਯਾਰ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਆ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾ। आप ऐसा करें, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਯੂਪੀਐਸ ਲੱਗੇ, आप ऐसा मेरी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ? ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। आप ऐसा करें, बांग्लादेश शिफ्ट हो जाए, वहां पे बिजली जो वाफर मकदार में मिलती है। यहाँ पाकिस्तान तो कितनी इंडस्ट्रियां उसे शिफ्ट हो गई हैं, वहां पे सस्ती भी है और मिलती भी है। श्रीलंका चले जाए। हाँ, या सीरी देवी चले जाएं। और आपको ये भी बता दूं कि अगर वीजा जाली लगवा के जाएंगे तो उसकी भी सजा है फिर बाद में। जो आप बातों में मुझे याद आ गया, वरना मैंने भाई तू कानून तो कभी बाहर भी आ जाए यार। मैं वकील हूँ, मैंने कानून के दायरे में रह के ही। इंसान नहीं होते यार, दस ਮੈਨੂੰ इंसान ही होते हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਿਲੌਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ऊंची आवाज में बाप से खिलौना नहीं मांगते वरना मैं तुम्हें 1.5 साल के लिए अंदर करवा दूंगा। और यार ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਕਾਲਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। मेरा कारोबार है यूसुफ भाई, मैंने यही काम करना है और मैं इस्लाह करता हूँ लोगों की। पहले तो मैंने कहना बिजली चोरी कर ला, हुन तो मैंने सजा बाद। मैं आपको ये बताया था कि बिजली चोरी करेंगे तो आपको उसकी सजा होगी, इसलिए बच जाएं। आपको तो मेरा मशकूर होना चाहिए, शुक्रिया, और साथ 2000 रुपया आपको अदा करना चाहिए। और बगैर वीजे से या जाली वीजे पे श्रीलंका जाने से आपको मना कर रहा हूँ। यार माफी दियो, मैं तो एक बिजली आसे सिर्फ फोन किया, तुसी मेनू मुल्कों बाहर भी भेजता, अद्धा कानून वो तो मेरा काम। मेनू तुसी बिजली दा हल करो यार बिजली दा हल तुहाडा चाचा बूटा ही करेगा। फिर इन्हां नूं कहो कि तुहानू कोई एनर्जी सेवर लै दे। यार मेनू एनर्जी सेव नहीं चाहिए, मेनू पक्खा चाहिए। तुहानू रब दा वास्ता पैसे पा के ना कोई मेनू यूपीएस माड़ा मोटा जितना एक पक्खा चल जाए मेरा सिर्फ बस। ओके चाचा बूटा जी, सफा वाले चौंक चो इन्हां नूं 2 पक्खे लै दिओ, 20 रुपए दे 2 आउणे ने ओ हैंड फैन। क्या बचिया, हुणे ते तू वकील सी, हुणे तू जफरी खान बन गया। नहीं, मैं बता रहा हूँ, असल में चाचा जी को ना वो कई बातों की समझ नहीं आती, इसलिए उनको समझा रहा हूँ। प्रोग्राम चाचे बूटे दा सामना मैनू पैंदा, ये आराम नाल चलो हुण कोई ਜਾਂਦੀ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ यार मेनू हवा दे फिर इधर आ के। ਕਾਤੋਂ ਮੈਂ ਹਵਾ ਦਵਾਂ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਯਾਰ। नहीं मैं आपा ही कर देना, मेहरबानी तेरी। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਬੈਠਾ, ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਾਲ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਚੱਲ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਯਾ
ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ यूपीएस ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। हाँ तो होर क्या कर वर्ल्ड मैजिक मैन बूटा। इमरान भाई आपने ये नहीं सोचना कि मेरा आपकी तरफ ध्यान नहीं है। नहीं जी, आपका ध्यान ही मेरी तरफ है। यानी आप यही समझ रहे हैं? नहीं नहीं जी, बस मेरा ख्याल है कि हुण टाइम हो गया, इन्हां दा मसला हल कर दिया आशिक साहब। नहीं वो तो बात बनती है, लेकिन अगर आप इजाजत दे तो पहले एक और बात बताओ। नहीं, मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं। नहीं है तो फिर आप हमारे बड़े हैं, आपकी माननी पड़ेगी। वो जो उसने जहेज की वापसी का केस करवाया हुआ है, वो उसे अदालत में साबित करना पड़ेगा। अपने गवाह लेके जाएगी और डोली हम लेके जाएंगे, बहस होगी, फिर वो तमाम कागजात जो हैं वो तहरीरी सबूत देगी, फिर अदालत फैसला करेगी। और नहीं, इन्हें कीता किया इन्हें कुछ कीता ही होगा, मैनू की पता। वो कहन दई है कि मेरा जड़ा समान जहेज आ वो किते खराब ना हो जाए, इस तो मेरा समान मैनू वापस किया जाए। इमरान अभी बच्चा है, इसको कानून के बारे में इतना नहीं पता, इसलिए मैं इसके बता रहा हूँ कि लो जी, मैं अब आपके मसले का हल कर दूं कि कानूनी तौर पर आप आए बाहर आई, आप ऐसा करें कि बुजुर्गों को, कुछ बड़े लोगों को इस केस में घर में ही डालें और वहां पे मसला हल करें, क्योंकि आपके मसले में तलाक का लफ्ज कहीं भी नहीं है, ना तो उस तरफ से ना इस तरफ से। लो जी, आपका मसला हल हो गया, बहुत बहुत मुबारक। अब आप मेरे लिए मिठाई का डब्बा, लेकिन वो शुगर फ्री जो होती है वो लेके आए। बूटा ही हल कर सकता था ये मसला, ये सिर्फ बूटे का ही काम है। मसला कोई भी हो, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में बूटा हल कर देता है। इसके बाद भी आपको किसी किस्म की जरूरत पड़े, मैं हाजिर हूं। और कानूनी तौर पर तो हम आपको यही मशवरा दूंगा कि आशिक हुसैन का भी शुक्रिया अदा कर दिया आप, इन्होंने। नहीं ये मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका मसला हल कर दिया आपने, बस मेरे लिए काफ़ी है। बाकी जो मैंने सजाएं बताई हैं वो आपने जेहन में रखनी है। चलो मुकाओ बूटा जी। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम के लिए आशिक हुसैन और अपने चाचा बूटे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।